So, Good evening. good evening. So, in last session, Happy New Year. Happy New Year, Sabko sir. Happy New Year. Happy New Year, sir. Okay. And this year is challenging for us. Okay. So, do lots of practice and जल्द से जल्द तो मार्केट में जाओ और अच्छा से अच्छा ऑफर ग्रैब करो with the higher package. Yes, sir. Yes, sir. Definitely. Thank you, sir. Yeah. Fine. Okay. So come to the point. So we have seen pandas. Okay, then NumPy. Number, Okay, then matplotlib, plot, leap, then Seaborn. Okay, so these are the libraries used for EDA, exploratory data analysis. Okay, so we have seen what is machine learning, what is the EDA part. Okay, so here the EDA is the main, the point of, we can say, the exploration. Okay, that means this 80 to 75 to 80% time we are spending on EDA, exploratory data analysis. Okay, after the completion of EDA we built a machine learning model. Okay, so here we have seen the types of machine learning algorithms. How many times how many types we have seen? There are three types of machine learning algorithms. Okay, the first one, what is a what Supervised. supervised. Okay, supervised. The second one is unsupervised, unsupervised. Okay, and the third one is reinforcement, enforcement. Okay, reinforcement. In supervised algorithm we have two types. Okay, one is a regression, regression, classification. another is a classification. Okay, classification. In Two major unsupervised types, we have, yes, Cluster, clustering algorithm. supervised and unsupervised. Clustering algorithm algo algorithm. Okay, ठीक है, reinforcement में वो penalty based algorithm होता है. तो in regression we have the simple linear regression and multilinear, SLR, and the second one is MLR. तो मैं instead of wasting time simple linear regression directly multilinear regression लेंगे, लेकिन regression से पहले हम देखेंगे कि exactly what is meant by regression, what is exactly math behind the regression, then we'll see how to implement the algorithm. Okay, so here regression and classification, I'll take this supervised algorithm for now and we'll see the exactly what is meant by supervised. So we have a data set. Okay, in data set we have two types of, that means independent variable and dependent dependent variable. or target or something, target color, ground truth, class variable, उसको नाम है. ठीक है, so whenever we have a data along with dependent variable, so blindly go for what? Supervised algorithm. Correct? Any Yes, doubt? no, Yes. How to select particular algorithm? डेटा तो मिल गया आपको, डेटा पूरा आपने कर दिया, चलो उसको एडीए कर दिया, उसको राइट फॉर्मेट में लाके दिया. ठीक है, अब उसके बाद में एल्गोरिथम बिल्ड करना है, अपने मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करना है. ठीक है, तो पहले आपका क्या है, डेटा है along with the what, along with what, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या यूज करना है, सुपरवाइज एल्गोरिथम. ठीक है, अगेन अगर डिपेंडेंट वेरिएबल, आप ध्यान से देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल अगर कौन सा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, देन यस, classification, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, regression, Regression. so blindly go for regression algorithm. So in interviewer may ask how you will decide which algorithm we can use for this type of data. For high level you just focus on the target variable on a high level. Okay, after that we'll see the there is some pipeline is also there, algorithm pipeline, but for our high level we can just see the behavior of the target variable. So here
The target variable is a type of continuous. Correct? Any doubt? No. ओके, सपोज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मीन वैल्यू कंटिन्यूअस है, कुछ भी आपको 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 सेल्स प्रेडिक्ट करना है, या बजट बजट आपको प्रेडिक्ट करना है, या आपको अगर सपोज एनुअल ग्रोथ प्रेडिक्ट करना है, या एनुअल जो कुछ सेल है, बोनस, ये सैलरी प्रेडिक्ट करना है, तो ये जो वेरिएबल है, टारगेट वेरिएबल, ये कंटिन्यूअस में, तो कंटिन्यूअस में अभी भी याद रखना है रिग्रेशन, रिग्रेशन ऑलवेज ऑलवेज ऑन कंटिन्यूअस वेरिएबल और कंटिन्यूअस वैल्यूज। ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, अगर डिस्क्रीट रहा, डिस्क्रीट और क्लासिफाई, यस और नो और समथिंग, ट्रू फॉल्स, ओके, देन मेल फीमेल, अप्रूव्ड, डिनाइड, तो ये कौन से टाइप का है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन टाइप का। करेक्ट, तो उस टाइम हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज करेंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बोल तो मैं एक वन वन कंपोनेंट पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम डायरेक्टली एल्गोरिथम ही देखते हैं कि एग्जैक्टली एल्गोरिथम पे कैसे एनालिसिस करना है, कैसे वेरिएबल को ये करना है, ऑल थिंग्स। तो विल सी एमएलआर, मल्टी लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, तो जिसको बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। जैसे आपको एज 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 है, उसका हाइट प्रेडिक्ट करना है। ओके, एज आपको दिया उसने हाइट, अगर वेट है तो उसका हाइट प्रेडिक्ट करना है, या टी शर्ट का साइज है तो प्रेडिक्ट कर नहीं, अगर आपने एज डाला तो उसको टी शर्ट का साइज आना चाहिए, तो यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ओनली वन टारगेट वेरिएबल, सॉरी वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, लेकिन हम मल्टी लीनियर रिग्रेशन देखेंगे, उसमें ये भी कवर हो जाएगा। मैं एमएलआर एक एल्गोरिथम आपको समझा के बोलूंगा, आपको एसएलआर करके लाना है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये करते हैं। हेलो, हेलो सर। यस यस, और डेटा इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है वो कैसे पता चलेगा फिर, मतलब कोई हम एक्चुअली रियल टाइम आपको दे वो अलग अलग फाइल में देते हैं। ओके ओके। ओके, बोल तो एक एक फाइल रहता है वो डिपेंडेंट वाला, और दूसरी सीएसवी रहती है वो इंडिपेंडेंट वाले। ओके, बट दैट मींस वाई कॉलम आपको, वाई कॉलम मेजरली आपको एक सेपरेट इसमें देंगे, सेपरेट सीएसवी में, और बाकी का जो एक्स कॉलम है वो सेपरेट सीएसवी में देंगे। ओके, अदरवाइज आपको डेटा के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। जब भी कभी आपको डेटा देगा, डेटा सेट, तो डेटा सेट के पहले आपको उस एक्सेल में फ्रंट जो पहला पेज रहता है वो किसके बारे में रहता है, वो उस डेटा के बारे में रहता है कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या डेटा, कौन सा कॉलम का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सा कॉलम किसके लिए यूज किया है, तो ये जो पूरे थिंग आपको देंगे पहले, वो रियल टाइम में बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस करते समय तो आपको नहीं आएगा डेटाबेस में, लेकिन आपको जो रियल टाइम में अगर किसी मशीन लर्निंग मॉडल आपको बिल्ड करना है, तो मैंने बजाज फिंसर पे हमने काम किया था। बजाज फिंसर ये हमारा क्लाइंट था, तो वहां पे उन्होंने हर एक कॉलम का इंपॉर्टेंस दिया था, वो कॉलम का इंफॉर्मेशन कि ये कॉलम किसके लिए यूज होता है, वो कॉलम का इंपॉर्टेंस क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको डेटा के बारे में, तो आपको ऑलरेडी उसमें आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। डेस्कटॉप, ओके, तो मैं इसके लिए एक डेटा सेट लेता हूँ कहीं से भी, एक कैगल से या कहीं से, कौन सा लूंगा, बेंगलुरु हाउस का, बेंगलुरु बेंगलुरु हाउस प्राइस डेटा, चलो इसका डेटा सेट करेंगे। है क्या, कौन कौन सा है, लोकेशन है, ओके ओके ठीक है, प्राइस है, ठीक है, मुझे ये डेटा चलेगा, कोई इशू नहीं। कहाँ पे डाउनलोड, कट एल,
ओके, कहाँ पे? बेंगलोर हाउस। linear regression। पहले import pandas as a pd, ठीक है। df इज इक्वल टू, सम हम उसको pd डॉट read अंडरस्कोर CSV। csv। ओके फाइन। अरे अब अगर आप डेटा सेट को देखोगे तो इससे पता चलेगा कि आपका कॉलम कौन सा आपको प्रेडिक्ट करना है। यहाँ पे अभी देखोगे तो आपको क्या कौन सा प्रेडिक्ट करना है कॉलम? क्या प्राइस। करना है? प्राइस। ऑब्वियसली ऑब्वियसली करेक्ट, ऐसा नो? यस। Yes. ओके ठीक है। नाउ we have data, so first of all we can check the behavior of the column, so just describe, we have describe जो कुछ न्यूमेरिकल्स वेरिएबल थे हमारे, उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। काउंट देखो, बाथरूम का काउंट देखो कितना है। ओके ठीक है ठीक है, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि डिफरेंट काउंट है, तो इसका मतलब कहीं तो भी कुछ डेटा मिसिंग है, करेक्ट ना? यहाँ पे 100 मतलब 13,247, यहाँ पे 13,320, दैट मीन मैक्सिमम कॉलम कितना है, तो मे बी इतना हम देख चेक करेंगे, डोंट वरी। अगर इसका बाथरूम का देखोगे तो कंप्लीटली ये स्क्यूड है। अगर देखोगे इसका मीन देखना है, मीन मींस इट्स मिडल पॉइंट। अब वहां से 0 to 25, मैंने बोला था आपको, एक शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं इसको, कि एग्जैक्टली इसमें से आपको क्या इनसाइड मिलता है, कि मुझे ऐसे मिलेगा कि ये मीन, ठीक है, उसका मीन ये है। अगर मैं 0 to मिनिमम 1 है और 25, तो 1 का डिफरेंस दिख रहा है। अगर ये हो गया लेफ्ट टेल, ओके। अगर मैं राइट टेल देखूंगा, राइट टेल 75 to 40, तो कंप्लीटली क्या है डेटा सेट? राइट स्क्यूड, Right skew. स्क्यूड है, यस इट्स स्क्यूड वन। ओके, सो मैक्सिमम 40 बाथरूम रह सकते क्या? नो। आई डोंट, कि मुझे नहीं लगता है इतना रह सकता है मैक्सिमम 40, तो ऑब्वियसली इसमें आउटलायर्स है। यस। एनालिसिस समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ओके, अब बालकनी के बारे में भी अगर देखोगे तो सेम है बालकनी का, ठीक है, इधर से 1 है, 0 to 1 है, ठीक है, सो 1 ये इट्स ये ठीक है। ओके, ये कोई इशू नहीं। यहाँ पे मेन देखो इसका, ओके, यहाँ से मिनिमम देखो 8 to 50, 8 to 50 बोल तो कितना हो गया? 42 का डिफरेंस आ रहा है। अब मैक्सिमम में अगर देखोगे तो कितना है? आउटलायर्स है इसमें भी। Outlast. इसमें भी आउटलायर्स, ऑब्वियसली बहुत सारे आउटलायर्स इसमें भी, ये भी स्क्यूड है। ओके, तो इन शॉर्ट एक हाई लेवल में हमें समझ में आया कि आउटलायर्स है, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। डीएफ, ओके, कितने कॉलम्स है? तो डीएफ डॉट कॉलम्स, ये हमारे कॉलम्स है। एरिया, टाइप, अवेलेबिलिटी, लोकेशन, साइज, सोसाइटी। अगर आप डीएफ यहाँ पर डीएफ डॉट, अगर मुझे देखना है कहाँ पे बात है, तो तो इसका अगर बात में अगर देखोगे, बात में तो इसका मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम तो हमें मिलेगा कि यहाँ पर मैक्सिमम है 40, और मिनिमम कितना था? मिनिमम तो वी हैव 1 बाथरूम, ठीक है। अगर 40 का अगर काउंट देखेंगे हम, डॉट मैक्स का काउंट, डॉट काउंट, तो कितना है? ओ, काउंट वेरिएबल नहीं है, चलो काउंट नहीं गया, वैल्यू काउंट्स। वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स करते हैं इसको डॉट, लेकिन ठीक है, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो विल फाइंड 40 का एक है, 15 का एक है,
ओके 27. 20 का भी एक है, 14 का भी एक है, 18 का एक है, कोई इशू नहीं। तो ये हमारे आउटलायर्स है, सिंपली हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि एक ही रो है ना। अगर बहुत सारे रो रहते थे तो क्या होता था, हमें हमारा डेटा लॉस होता था ना। Yes. एक एक रो है, इट्स ओके, हम ड्रॉप कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं। Yes sir. Sir 27 भी outliers consider होगा ना? ये भी आउटलायर्स ही एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, अगर उसका शेप वगैरह देखेंगे वो ठीक है, दैट्स द सेकंड पार्ट, कि उसका शेप शेप वगैरह देखेंगे तो ठीक है। अब उसके बाद में हम देखना है कि एग्जैक्टली नल कितने, नल वैल्यूज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे df डॉट इज Is null. इज नल। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली सम कैलकुलेट करते हैं तो देखो कितना, ओके दिख रहा है क्या। सोसाइटी, And सोसाइटी balcony. में बहुत सारे नल है। अगर बालकनी df डॉट काउंट देखूंगा मैं, df को काउंट कितना है, तो एरिया टाइप ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें बहुत सारा है। तो ऑलमोस्ट कितना है, df डॉट शेप अगर करेंगे शेप, तो ऑलमोस्ट कितने हमारे रोज 1320 बराबर है। तो बहुत सारे आउटलायर्स है इसमें, बहुत सारे ब्लैंक्स है। ठीक है, कोई इशू नहीं, हम अभी के लिए जस्ट ये कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। तो क्या रहेगा बोलो, हम एक नया ये करेंगे, हम ओरिजिनल इसमें नहीं करेंगे। हाँ, ड्रॉप, Development ये row. नहीं, हाँ इसमें कर दो, इन प्लेस इज इक्वल टू in place इन प्लेस इज इक्वल टू 2 5 y डॉट df 1 होना चाहिए इसमें। डीएफ फंड स्टोर करना चाहिए हाँ, ऊपर। अरे यार इसमें ठीक है, df में वही हो गया, इधर करने की जरूरत नहीं थी, ये करने की जरूरत नहीं थी, इसमें ही होना चाहिए था। चल जाने तो कोई इशू नहीं, ठीक है, df हो गया। अब इसमें df डॉट इज नल, ओके डॉट सम, Sum. अब 0 0 हो गया, ठीक है, adf। अब इसमें से फॉर नाउ अभी बाकी का एनालिसिस हम ये करते हैं। पहले अब इसका एग्जैक्टली हमारा एम क्या है वो देखते हैं, फिर हम वो पूरा देखेंगे कि अवेबिलिटी से इसका क्या रिलेशन है, ये क्या रिलेशन है, ये बाथरूम में कौन सा एरिया कितना है, बाथरूम का साइज कितना है। अगर यहाँ पे देख रहे हो आप, तो यहाँ पे देखो 216 उतना ही है, इधर भी उतना ही है, ठीक है, कोई इशू नहीं। एरिया वाइज देखेंगे कि उसका सही में उतना रहता है क्या, ठीक है। बोलते ये स्क्वायर मीटर में हुआ है, स्क्वायर फीट में, तो स्क्वायर फीट में यस। सर ये 13,000 रो से घट के अभी 7600 रोज हो गए हैं, 7500 रो हो गए हैं, तो उससे हमारे प्रिडिक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा उसके गलत सही होने पे या एक्यूरेसी? पड़ेगा पड़ेगा, यस डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा कितना कितना 50% सर डेटा लॉस होने इसके में प्लेस पे इंटरपोलेट फंक्शन यूज किया तो वो मिसिंग वैल्यू गेस करके फिलअप करेगा ना। इंटरपोलेट भी कर सकते हो आप, अदरवाइज फॉरवर्ड फिल भी यूज कर सकते हो। ओके, पर लेकिन अभी जस्ट फॉर नाउ मैं जस्ट करने के लिए यूज किया, इंटरपोलेट भी यूज करके बताता हूँ मैं, डोंट वरी। लेकिन अभी के लिए जस्ट मैंने दिखाने के लिए कि चल मुझे लीनियर रिग्रेशन मॉडल एल्गोरिथम बिल्ड करके बताना है, फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे, इसका हिट मैप निकाल के देखेंगे कौन सा बोले तो अभी एक्यूरेसी आएगा। एक्यूरेसी आने के बाद में हम अगर वापस से एनालिसिस करें, नॉर्मल एनालिसिस बोलते तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, एक नॉर्मली स्टैंडर्ड ड्रॉप किया और अभी एल्गोरिथम बिल्ड करूंगा, तब का एक्यूरेसी, और बाद में हम फीचर सिलेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग करके जो प्रॉपर एनालिसिस करके रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट दोनों को कंपेयर करेंगे कि रैंडम एल्गोरिथम जब बिल्ड करते हो, मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करते हो तो क्या होता है, और एक प्रॉपर ईडीए करते हो तो क्या होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये मैंने ब्लाइंडली क्या कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया। तो ये मैंने क्या कुछ एनालिसिस किया क्या, नहीं. जस्ट ब्लाइंडली ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारा नॉर्मल बोलते हैं लेमन टर्म रहता है कि इसे अगर ऐसा किया तो क्या होगा। तो डेफिनेटली आपको आगे समझेगा कि एक्यूरेसी पे कितना इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। तो अभी ये हो गया हमारा नॉर्मल, बोलते ये अभी एल्गोरिथम बिल्ड करने से पहले विल सी उसका पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है ना। सपोज
एक सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास सपोज एक्स कॉलम है और ये वाई कॉलम्स है, एक्स ऑन वाई। अगर मैं कोई केस पर ये लेता हूँ, यहाँ पे सपोज एक्स इज नथिंग बट द एरिया, एरिया और उसका ये प्राइस है, ऐसे समझ लो, एरिया और प्राइस। सपोज एक्स में मैंने सपोज 100 स्क्वायर फुट, ऐसा एक रैंडमली आप लोग को ये दे रहा हूँ, रियल वैल्यू ऐसा ही नहीं है। 100 स्क्वायर फीट का, अगर 100 स्क्वायर फीट का अगर प्राइस है सपोज 20 लाख, ओके 20 लाख। सपोज यहाँ पे है 95, ओके उसका है सपोज कहीं पे 17, ओके यहाँ पे 150, उसका है सपोज यहाँ पे 22, यहाँ पे है सपोज 180 का प्राइस है सपोज यहाँ पे सपोज 26, ओके। तो ये मेरे वैल्यूज है, ओके। अगर इसको एक्स और वाई में मैं अगर इसको प्लॉट करता हूँ, एक्स और वाई में, ठीक है, दिस द एक्स एंड दिस द वाई एक्सिस में। तो हियर वी हैव हियर सपोज 50, ओके, सपोज यहाँ पे 90, यहाँ पे 100, ओके यहाँ पे सपोज 150, यहाँ पे 180, यहाँ पे 200, ठीक है। यहाँ पे सपोज लाख, यहाँ पे सपोज 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, ऐसा है, ठीक है। अब इसको प्लॉट करूंगा मैं, 100 का 20 लाख, 100 का सपोज 20 लाख, समवेयर यहाँ, ओके। 95 का 17, 95 का समथिंग यहाँ पे समवेयर यहाँ पे आएगा। 150 का 22 समवेयर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 180 का 26, 180 का 26 समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसे अगर प्लॉट करूंगा मैं तो मुझे बहुत सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे 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 डेटा पॉइंट्स रहेंगे, ओके। तो ये मेरे एक्चुअल पॉइंट्स है, जो मेरा डेटा सेट था, ध्यान से देखो, ये मेरा डेटा सेट था और ये मेरा एक्चुअल पॉइंट मैंने उसको, तो ये सब जो है मेरे एक्चुअल पॉइंट्स है, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन में पहला तो अजम्पशन ये है कि हमारा वैल्यू लीनियर ही होना चाहिए। लीनियर मीन्स दोनों का जो रिलेशन है वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है। और आपका एम क्या है? एम क्या है? टू फाइंड बेस्ट फिट लाइन, टू फाइंड बेस्ट फिट लाइन। तो क्या करना है? बेस्ट फिट लाइन। सपोज इसमें से मैं एक कोई लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो इस लाइन को कुछ एक्चुअल पॉइंट टच होंगे, बराबर है। ये मेरे कुछ एक्चुअल पॉइंट इसको टच हो गए, ये हो गया इधर का, ये हो गया, ठीक है। और जो नहीं हुए दैट मीन्स मेरा ये था मेरा प्रेडिक्टेड पॉइंट, बोलते प्रेडिक्शन, और ये मेरे एक्चुअल थे। तो ये इसका डिस्टेंस, ये जो नहीं हुए इसका मतलब इतना मेरा एरर है, एरर। ये क्या है? मेरा एरर, इतना ये एरर है, करेक्ट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करने का उसका वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन जस्ट लेमन टर्म में समझ रहे हो कि ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की और लाइन से मैंने कैलकुलेट किया कि ये कितने दूरी पे है, ये कितने दूरी पे है, ये कितने दूरी पे है, ठीक है ना। तो ये मेरा जो लाइन है, लाइन पे जो पॉइंट्स रहेंगे, लाइन पे जो पॉइंट, उसको बोलते हैं हम प्रेडिक्टेड पॉइंट, और ये जो पॉइंट है वो एक्चुअल पॉइंट। लेकिन फिर हमें क्या निकालना है? बेस्ट फिट लाइन निकालना है। ये तो मेरी बेस्ट फिट लाइन नहीं है, ये मेरी बेस्ट फिट लाइन नहीं है। फिर बेस्ट फिट लाइन कब कैसे निकलेंगी? कि हम क्या करेंगे, हर एक पोजीशन से हर एक लाइन निकालेंगे, ऐसे लाइन निकालेंगे, करेक्ट। और हर एक लाइन का एक एरर कैलकुलेट होगा, इसका E1 सपोज, E2 इसका, E3 ये E4, ऐसा। जिसका एरर कम है, जिस लाइन का एरर कम है, वो हमारे लिए हुई बेस्ट फिट लाइन। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। एकदम सिंपल वे में समझाया, मैंने कोई डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं किया, कुछ नहीं। जो लाइन
सबसे ज्यादा एक्चुअल पॉइंट को कट करेगी या टच करेगी, वो लाइन हमारे लिए बेस्ट फिट लाइन होगी। ये उसके पीछे का मैथमेटिक्स है। अब एल्गोरिदम देखो, मैंने मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करना है ना, ये 2 मिनट का टास्क है, 2 मिनट। लेकिन इस मशीन एल्गोरिदम बैकएंड में क्या मैथमेटिक्स होता है, बैकएंड में ऐसा होता है, बैकएंड में क्या होता है ऐसा। तो एवरी लाइन, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी, अब मैंने बोला लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन लाइन ड्रॉ कैसे होगी, तो वी हैव फॉर्मूला। सो y इज इक्वल टू MC mx square. ओ mc स्क्वायर, वो आइंस्टाइन तो हो गया, Yes. mx plus y is equal to mx plus c, where m is nothing but the slope, okay, the c is nothing but the intercept। m क्या रहता है, स्लोप, कितना कितना स्लोप रहेगा, दैट मींस स्लोप इज नथिंग बट कितना ये रहेगा उसका कितना, करेक्ट। और ये क्या है, ये क्या है, ये इंटरसेप्ट। समझ में आ रहा है, यस। क्या हो गया, ओ मैथमेटिशियन, क्या हो गया, नथिंग। अरे समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, Yes, कुछ sir. ज्यादा Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा हार्ड हार्ड है क्या, ये ज्यादा नहीं टफ है, नहीं नहीं नहीं, नॉन है सर ये तो। नो सर। ये पता है क्या सबको, पता इन द सेंस सर, पढ़ा है ना 12th में। इसमें तो 12th में पढ़ा था सर, ये अभी याद नहीं आता। नहीं कुछ नहीं, आपको ऐसे सिर्फ बाउ करके रख दिया है कि बहुत ये है, मैथ है, मशीन लर्निंग बहुत टफ है। जब आप रियल टाइम में काम करोगे ना, तो पता चलेगा कि जस्ट आपका एनालिटिकल जो रहता है ना थिंग, और जो भी है ना, अभी फ्रैंकली बोलूंगा तो जब सब है ना, सब ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, इसका रिलेशन इतना है, इतना परसेंट है इसका, ये हमें फीचर लगेगा, ये फीचर में सिर्फ देखना है, बराबर उसका स्क्यूनेस नहीं है, ठीक है, तो वो फीचर सेलेक्ट करना है, उस फीचर को हमें ऐड करना है हमारे रिलेवेंट फीचर में, और उस फीचर को लेकर एक डेटा सेट, बेंचमार्क डेटा सेट बनाना है, उस डेटा सेट को हैंड ओवर कर देना है मशीन लर्निंग टीम को, जो खुद टीम है जो मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करने वाली। फिर मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड होता है, फिर उसके बाद में उसका हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होता है। अगेन अगर उसका जो रिजल्ट है वो अप टू द मार्क नहीं आया, वापस से वो ईडीए के लिए जाता है। ये इटरेटिव प्रोसेस रहता है, वापस से ईडी होता है, वापस से जो इररिलेवेंट फीचर है उसको निकाल देते हैं, रिलेवेंट फीचर देखते हैं, वापस से मॉडल बिल्ड होता है, टेस्ट होता है, एक्यूरेसी आ गया, फिर उसको प्रोडक्ट या प्री प्रोड पर डालते हैं, फिर अननोन डेटा सेट के साथ में उसको वापस से टेस्ट करते हैं, ठीक आया, फिर उसको डालते हैं प्रोडक्शन पे, फिर वापस से उसका एक्यूरेसी तो पीरियडिकली चेक होता है, अननोन इस पे काम कर रहे हैं या नहीं। सुने, अगर वो बंदा टेस्ट में अच्छा टेस्ट में 20 आउट ऑफ 20 दे रहा है, लेकिन फाइनल एग्जाम में फेल हो जा रहा है, कोई मतलब है क्या, नहीं। हमें कैसा चाहिए, ऐसा मॉडल चाहिए, तो वो उसको बोलते हैं ओवर फिटिंग, हम बोलते हैं ना उसको ओवर स्मार्ट हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था उसको। तो वैसे ही मॉडल को भी होता है, मॉडल अगर ऐसा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है आपको टेस्टिंग पीरियड में, जब टेस्ट कर रहा है ना, बेस्ट कर रहा है बोलते तो इसके, लेकिन सॉरी ट्रेनिंग पीरियड में वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब टेस्टिंग के लिए जा रहा है फट जा रहा है, सो वो दैट मींस वो मॉडल ओवरफिट हो गया है। ओवरफिट, अंडरफिट, ये भी देखेंगे, डोंट वरी। तो ये समझ में आया लॉजिक क्या था, उसके बिहाइंड का लॉजिक क्या है। तो जो लॉजिक हम जो लाइन निकालने वाले, तो लाइन के लिए क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m क्या है यहाँ पे, तो स्लोप है, लाइन का स्लोप। c क्या है, इंटरसेप्ट। अरे इंटरसेप्ट को देखो, अभी देखो तो कुछ भी नहीं, वापस एक बार अगर देखोगे ना, यहाँ पर दो लाइन x, ये x है, ये y है, सॉरी ये x है, y, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाइन्स है, यहाँ पे लाइन्स है, ओके, ये सॉरी एक्चुअल पॉइंट्स है, ठीक है। अब जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ओके। हियर m is nothing but the slope, this is the slope,
ओके अगर थोड़ा सा भी इंटरनल बताऊंगा तो ये दिस इज नथिंग बट दी हियर कौन सा पॉइंट है ये y1 minus y0 okay and this is nothing but the what x0 x1 अभी ये अंदर इस ये जा रहा है ये इसको नहीं ये इसका रहता है वो अभी अभी नहीं चाहिए मैं बाद में बताऊंगा ओके ठीक है ये हो गया हमारा स्लोप ये यम स्लोप इज नथिंग बट दी y0 minus y1 है ना y1 my upon x0 minus x1 करेक्ट ना Yes. Yes. यम इज इक्वल टू क्या है ऐसा है ना y0 और y1 y2 minus y1 ठीक है Y2 minus Y1 y1 x2 minus x1 X2 minus X1. Yes. x1 ये हो गया हमारा स्लोप दिस इज द इंटरसेप्ट ये इंटरसेप्ट जहां पे वो कट होती है अब इंटरसेप्ट का कोई लेना देना नहीं है आपको सिर्फ लाइन को मूव करना है इधर करो या इधर करो इंटरसेप्ट का कोई इशू नहीं तो इंटरसेप्ट को हमें कंसिडर नहीं करना अभी कांस्टेंट है वही रहने वाला है डोंट वरी उसको छोड़ दो हमें फोकस क्या पे करना है यम पे करना है ओके अब एम को चेंज करते रहना है ठीक है तो एम को ऐसे चेंज करना है कि हमें एक पोजीशन पे ऐसी लाइन मिलेगी जो हमारे लिए होगी बेस्ट फिट लाइन तो अब ये कैसे मिलेंगी तो इसके लिए है ग्रेडियंट डिसेंट इसके लिए ग्रेडियंट डिसेंट दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो इस लाइन को मूव कर रहे हो बराबर है मूव करने के बाद में अब एक ये लाइन मिल गई आपको फॉर एग्जांपल ये लाइन मिल गई ये लाइन का कुछ तो भी एक एरर रहेगा ये लाइन का भी एरर था सपोज E1 है ये E2 है अगर लाइन को नीचे मूव करते हो तो इसका कुछ E3 एरर मिलेगा दैट मींस वी कैन प्लॉट द ग्राफ अगेंस्ट एरर एंड यम दिस इज द एरर एंड यम सो ऑलवेज रिमेंबर द ग्रेडियंट डिसेंट इज नथिंग बट द फाइंडिंग द ग्लोबल मिनिमम अभी ग्लोबल मिनिमम क्या है ये अभी के लिए छोड़ो लेकिन हम क्या कर रहे हैं एरर और उसके अगेंस्ट स्लोप इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि कुछ पॉइंट पे एरर यहाँ पे ज्यादा है स्लोप का कम है स्लोप का वैल्यू कम है ओके जब आप एरर कम होते जाएगा एक पॉइंट पे एक ऐसा मिलेगा आपको ये ऐसे और अगर उसको बढ़ाते रहेंगे तो ऐसा तो एक पॉइंट पे एरर ऐसा मिलेगा जिसमें यहाँ पर आपका एरर ना वो ऑलमोस्ट कम के बराबर होगा ऑलमोस्ट कम तो जिस पॉइंट पे हमारा एरर कम है वही हमारा वैल्यू है यम का वही वैल्यू है यम का उस यम को उठाओ वो बन गया आपका बेस्ट फिट लाइन वाला दैट मींस y वही रहेगा यम वो है हमें x देंगे यम x प्लस एम एक्स है नहीं सॉरी इनटू ये इनटू यहाँ पे इनटू प्लस सी का कोई इशू नहीं सी तो कांस्टेंट है हमें फाइंड करना है यम का वैल्यू इनपुट रहेगा हमारा x इनपुट देंगे हमें y मिलना चाहिए सपोज यहाँ पे मैंने एरिया दूंगा उसका प्राइस प्रेडिक्ट होना चाहिए तो ये हमारा इनपुट है ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट पिक्चर y क्या हमारा डिपेंडेंट पिक्चर लेकिन उसके लिए हमें एक्यूरेसी के लिए हमें यम फाइंड करना जरूरी है अगर यम परफेक्ट मिल गया हमें तो हमारा एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली ज्यादा रहे तो यम कैसे आएगा तो यम ये फाइंड करेगा क्या बेस्ट फिट लाइन को लेकिन वो बेस्ट फिट लाइन कैसे आएगा तो वो हम करेंगे बाय यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट तो ग्रेडियंट डिसेंट इज नथिंग बट टेकिंग अ बेबी स्टेप्स देखो टेकिंग बेबी स्टेप्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हो बेबी स्टेप बोले तो हम थोड़ा एरर कम करना है हम क्या कर रहे हैं यम का वैल्यू कम ज्यादा कर रहे हैं यहाँ पे यम थोड़ा था देखो यहाँ पे थोड़ा तो एरर ज्यादा था यहाँ पे एम का वैल्यू बढ़ा रहे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हमें एम का वैल्यू मिल जाएगा लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट में इतना याद रखना है टेकिंग बेबी स्टेप अगर आप बड़े स्टेप्स लोगे बड़े स्टेप बोले तो वैल्यू अगर ज्यादा से करोगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा ही नहीं जल्दी आप जंप होते रहोगे आपको ये पॉइंट अगर मिलना है में लेना है तो आपको एम का वैल्यू फ्रैक्शन से कम ज्यादा करके देखना पड़ेगा टफ था क्या नो सर मैं इसका नोट्स वगैरह देता हूँ डोंट वरी आज ही देता हूँ ग्रेडियंट डिसेंट का लिनियर रिग्रेशन का थ्योरी नोट्स लेकिन
आपको पहले कॉन्सेप्ट पता, बैकएंड में क्या हो रहा है, बैकएंड में कैसा हो रहा है कि हमें क्या करना है लीनियर रिग्रेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर रिग्रेशन में लाइन ड्रॉ करते हैं लीनियरली, दैट मींस इंडिपेंडेंट फीचर डिपेंडेंट लीनियर कोलिनियर है अजम्पशन, ठीक है। फर्स्ट कंटिन्यूअस है, रिग्रेशन यूज करना है, कोलिनियर है लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद में आपने अगर ड्रॉ किया है उसको पॉइंट, तो ड्रॉ करने के बाद में अगर आपको अगर लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एक ऐसे लाइन फिट करने बोल तो निकालनी पड़ेगी जो बेस्ट फिट लाइन है। तो बेस्ट फिट लाइन इज नथिंग बट क्या, विच इज टचिंग मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स, जिसका एरर कम रहो। ओके अब आते हैं एरर की तरफ, मैंने डायरेक्टली बता दिया, ठीक है। अब एरर कैसे कैलकुलेट होता है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, लिख लो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। एरर कैसे कैलकुलेट करना है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, एक सेकंड, फाइन, यहाँ पे दिस इज द लाइन, ओके ये मैंने लाइन निकाला, ये हमारे सपोज ये हो गया, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एक्स है, या सपोज ऐसे पकड़ लो, ये हमारा एज है और ये हमारा सैलरी है, सेल, ठीक है। ये ऑब्वियसली लीनियर रिलेशन है एज और सैलरी में। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पॉइंट क्या है, ये हमारे एक्चुअल पॉइंट्स है y, करेक्ट। एंड दिस points on line is nothing but the predicted point which is y hat. Predicted means y hat, okay, ठीक है। the distance between what, actual point, this is the actual point, and predicted point, this is the what, actual point, this is the predicted points, this is the actual point, this is the predicted point, the actual point, this predicted point, तो ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस को अगर हम इसका सम अप करेंगे, सपोज इसका कोई डिस्टेंस निकला एक्चुअल का और इसका, तो अगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे हम ऐसे ऐसे ये करके, तो किसी का सपोज इस पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका सपोज -2 आ गया, ओके, प्लस इसका आ गया सपोज, इस ऊपर का आ गया सपोज 4 आ गया, प्लस इसका माइनस सपोज 10 आ गया, ऐसे। तो हमें माइनस में नहीं मिलना चाहिए वैल्यू, हमारा एरर ये माइनस में नहीं मिलना चाहिए, तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, उसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, ओके, सम ऑफ स्क्वायर एरर, यस ई, दिस इज नथिंग बट द एरर। तो सम को हम सम अप करते हैं, कितना एरर आया, सपोज इसका एरर आएगा सपोज 2.2715 ऐसा समथिंग आ गया, ये हमारा एरर हो गया, ओके। दूसरी एक लाइन निकालेंगे, ये लाइन 1 है, हेलो, Yes, sir, you are audible. ओके, ऑडिबल सर। ये मेरा लाइन 1 है, इसका ये एरर आ गया। दूसरा एक लाइन निकाला, उसका एरर आया सपोज 0.63 समथिंग, ओके। और एक आया जिसका लाइन है सपोज 0.21, बाकी का आया सपोज 2.2 से समथिंग। तो इसमें से इस लाइन का एरर सबसे कम है, दैट मीन्स एरर कम है, इसका मतलब क्या है, एरर कम है, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल पॉइंट एंड प्रेडिक्टेड पॉइंट ये क्लोज है, समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। Yes, sir. Okay. अब ये क्यों कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं बेस्ट फिट लाइन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब भी कभी आप जब डेटा लीनियर रिग्रेशन में आप जब डेटा मॉडल उस डेटा को मतलब उस डेटा को कैप्चर करके हमारा मॉडल बिल्ड होगा, सपोज यहाँ पे मैंने बोला कि एज, ओके, या एरिया, सपोज एरिया और उसका सपोज प्राइस है, यहाँ पे प्राइस है, एक बार की आपका लाइन मिल गया, आपको लाइन मिल गया ना, तो आप कौन सा भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर सपोज मैंने एरिया है, सपोज मेरे ये है, तो उसके एसोसिएट आप प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी एरिया ये है, ये उसका एसोसिएट प्राइस, तो दैट मीन्स इनडायरेक्टली एक्स का यूज कर आप वाई प्रेडिक्ट कर सकते हो, एरिया का यूज कर आप प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हो, करेक्ट। Yes.
Yes. क्यों 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 कर रहे हो आप? एक बार आपका लाइन मिल गया ना आपको, बेस्ट फिट लाइन, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा point, आप एक पॉइंट एक दे रहे हो, यहाँ पे भी दिख रहा है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बराबर है? तो आपको आपको यम मिल गया परफेक्टली, तो आप x दो कौन सा भी, y आपको मिलेगा। तो यम मीन नथिंग बट द स्लोप। तो ये लाइन का स्लोप एक बार मिल गया ना आपको कि लाइन कैसी है, खत्म, कैसे भी प्रेडिक्शन कर सकते हो। अगर ये समझ में आया तो पूरा का पूरा लीनियर रिग्रेशन समझ में आ गया। 3 बातें याद रखना है, लीनियर होना चाहिए, उसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, यम का वैल्यू, और यम का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लगेगा, एरर वर्सेस स्लोप, और उसको जो जो प्रोसीजर है उसको Slope. बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। अगर आप Gradient देखोगे descent. ग्रेडियंट डिसेंट, तो टू फाइंड ग्रेडियंट डिसेंट मीन टू फाइंड द ग्लोबल मिनिमा, समझ में आ गया? टू फाइंड द ग्लोबल मिनिमा। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट, अगर ये इसमें देखो x लॉस इज नथिंग बट द एरर, याद रखो। जैसे यू कैन सी इनिशियल वेट, यहाँ पे वेट, यहाँ पे जे मीन्स जे ऑफ वेट मीन्स एरर है, तो यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे कम 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 करते आ रहे हैं। अगर इसका मैं आपको एनिमेटेड बताऊंगा, एनिमेटेड GIF कहाँ पे है GIF, ये देखो, नो नो दिस इज नॉट, मुझे ये नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा है बेस्ट फिट लाइन, लेकिन उसके अगेंस्ट में ये कहाँ पे ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल, ये देखो इपोक, हाँ ग्रेडियंट डिसेंट वाला चाहिए, दिस वन। देखो यहाँ पे ग्लोबल मिनिमा आ गया, यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन मिल गई उसको, दैट मीन्स एरर सबसे कम है। कॉस्ट मीन्स कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं लॉस को, देखो एरर को लॉस्ट कॉस्ट, देखो यहाँ पे मिल गया उसको ग्लोबल मिनिमम, यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन मिल गई। इसको भी देखो, यहाँ पे ये देखो ग्लोबल मिनिमम यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखो एरर, देखो एरर, ये परफेक्ट लाइन, परफेक्ट है। ये देखो एरर कितना था, कम 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 कम, जहाँ देखो कम 0. समथिंग समथिंग पे बेस्ट फिट लाइन मिल जाती है। यहाँ पे देखो 0.059 पे शायद से 5956 पे, यहाँ पे देखो ये एम है, यम, और यहाँ पे एरर है। समझ में आ रहा है क्या? यस तो हमें जब स्लोप मिल गया, कोई इशू नहीं, एक बार स्लोप मिल गया मीन्स लाइन मिल गई आपको, बेस्ट फिट लाइन। तो वो कैसे मिलेगा, आपको एरर को पुट करना पड़ेगा, एरर भी देखना पड़ेगा, एरर के साथ में आपको स्लोप, तो कम एरर पे जो स्लोप मिल गया वो हो गया हमारा बेस्ट फिट लाइन। लाइन मेन कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वो मुझे बोलो, बाकी का हम देखेंगे क्या, कुछ नहीं। यस सर यस सर। लीनियर रिग्रेशन सबको समझ में आया? यस सर। यस 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 सर। यस इंटरव्यू में वही यही पूछेंगे आपको, व्हाट इज ग्रेडियंट Yes, डिसेंट, sir. ओके, व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। अब इसको आप ऐसा उल्टा भी बोलेंगे, व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन क्या है? एरर। लॉस फंक्शन एरर, यस ओके। तो वो कुछ दूसरा कुछ नहीं है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर ही अच्छा है, और भी रहता है, ओके, लेकिन मैक्सिमम सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर यूज होता है क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू हम अवॉइड करते हैं।
कोई इशू है केस में? क्या कुछ सर डिफिकल्ट? जैसे जैसे कॉस्ट फंक्शन पूछा तो सिर्फ उसका आंसर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर ही रखना है या फिर कुछ No, और no, भी no, no, डिटेल? no. It's an actually it's an distance between actual point and predicted points. Okay. ओके So आपको वो पूरा बताना है कि जैसा या वो पूछेंगे कि why we are मुझे पूछा था एक बार, मुझे पूछा था और कुछ कैंडिडेट लोगों को पूछा था why we are squaring the errors. वो आपको कंफ्यूज कर देंगे कि स्क्वायर करने के बाद में तो एरर का तो बढ़ जाएगा ना वैल्यू. Yes, sir. हाँ, बट इट इज नॉट लाइक दैट. वी आर जस्ट अब उसका वैल्यू बढ़ने दो, उसका कोई इशू नहीं है. क्वांटिटी बढ़ने से एरर पे कोई इम्पैक्ट नहीं गिरेगा. समझ में आया? क्वांटिटी उसको यस स्केलिंग बोलते हैं, उसको स्केलिंग. अगर आप स्केलिंग करोगे, अभी देखो अभी मैं कैसे उसको समझाऊं स्केलिंग को. अगर हमने अभी कैसे समझाऊं स्केलिंग, एक कैसे रहता है, स्केल अप और स्केल डाउन बोल के एक कॉन्सेप्ट रहता है मैथमेटिक्स में. जैसे अगर मैं अगर मैं कुछ वैल्यूज को, अभी देखो अभी समझ में आता है क्या. माय अगर 1000 है, लेकिन 1000 का मेरे पास स्केल नहीं है, स्केल नहीं, इतना बड़ा मेजरमेंट नहीं है. तो मैं इसके लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ 10. ओके, सपोज 900 है, तो उसके लिए 9 समथिंग समथिंग यहाँ पे 1 है, तो इसके लिए सॉरी 100 है, ये 1. तो ये मैंने क्या किया, एक स्केलिंग कर दिया, इसको स्केल डाउन कर दिया ना वैल्यू को. यस करेक्ट ना? ये स्केल डाउन हो गया. इसका अभी देखो, आप 10 करो या 100 करो, वो तो वही रहेगा, सिर्फ स्केलिंग में डिफरेंस है. तो आपका एरर 76 रहने दो या 0.76 रहने दो, 0.76 वही रहेगा. आपको सिर्फ यहाँ पे स्केलिंग बढ़ा है, यहाँ पे स्केल डाउन किया है, दैट्स इट. तो रात में करते हैं हाँ सॉरी. जैसे ग्राफ में करते हैं ना वैसे है ना ग्राफ ग्राफ हाँ ग्राफ में मैथमेटिक्स यस यस यस, ग्राफ में जब आप करते हो ना स्केल स्केल डाउन, वैसे ही. ओके, सो है. तो अब एरर को कितना भी बढ़ाओ, एरर को आप 1000 उसका स्क्वायर करो, कोई इशू नहीं है, वो स्केलिंग वैसे ही रहेगा. आपको एरर अगर सपोज ऐसे किया आपने 2 का सपोज 4 है. ओके, यहाँ पे 4 है, इसका 16 है, इसका तो सिर्फ वैल्यू का स्केल बढ़ गया है, लेकिन एरर तो वही रहेगा. कम, सबसे कम तो 4 ही, तो 4 ही रहेगा, इसका मतलब 2 है. स्केल अप होने से कोई इंपैक्ट नहीं गिरेगा, याद रखना. ओके, मिनिमम तो मिनिमम भी रहेगा. जब भी वो ग्रेडियंट डिसेंट का ग्लोबल मिनिमम पॉइंट आएगा ना, तो ग्लोबल मिनिमम दैट मींस नथिंग बट दी ओवर एक्चुअल पॉइंट, दैट मींस एक्चुअल एम. ठीक है. यस सर कोई इशू है तो बोलो. ठीक है, अब इस पे आते हैं हम. अगर सपोज इसमें शॉर्ट में बताता हूँ, फिर हम बाद में उसको ये कर लेंगे, ईडीए करेंगे ठीक से. हाँ, अब इसमें देखो, यहाँ पे मैं टाइप अवेलेबिलिटी, ये एरिया टाइप अवेलेबिलिटी, लोकेशन, इसको निकाल देता हूँ और इस सोसाइटी को भी निकाल देता हूँ अभी के लिए, जस्ट आपको करके देखो. हाँ, तो क्या 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 करना है बोलो. मुझे इसको निकालना है, एरिया टाइप अवेलेबिलिटी लोकेशन, साइज ड्रॉप रहेंगे करना है सोसाइटी. तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली क्या डीएफ करेंगे. डीएफ डॉट ड्रॉप हाँ, मैं डीएफ कॉलम्स करता हूँ. पहले मुझे कॉलम ये करना है ना, डीएफ यस डॉट, हाँ, ड्रॉप, ड्रॉप हाँ, कॉलम लिस्ट लिस्ट में या देंगे डायरेक्टली डीएफ डॉट ड्रॉप भी करता हूँ मैं, कोई इशू नहीं. यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलम्स, हाँ, कौन कौन सा है, एरिया अवेलेबिलिटी लोकेशन डाल देता हूँ यहाँ पे. सोसाइटी क्या हुआ इसको, नहीं सर कॉलम लेना पड़ेगा शायद. नहीं कोई जरूरत नहीं उसको. सोसाइटी, यहाँ पे क्या एक्सिस में, एक्सिस इज इक्वल टू 1. वन. ओके, इसको ही इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करता हूँ.
DF आगे इसको थोड़ा ये करते हैं, क्या करते हैं, क्या है ये स्नेहल क्या करते हैं। ओके, तो उसमें हम अभी इसको इसको ये लेना है मुझे, ये न्यूमेरिक चाहिए, न्यूमेरिक, इसको हटा देना है। क्या करोगे आप? हम्म? क्या लॉजिक लगाओगे? नया कॉलम बनाना पड़ेगा ना, वो नया append कॉलम करके। बनाएंगे, हाँ नया कॉलम बनाएंगे, साइज का ही, साइज ही नाम रखेंगे उसका, हाँ DF साइज Yes. डॉट अप्लाई। ठीक है, कौन सा फंक्शन हम यूज करूँ? लैम्बडा x:x, x आएगा। उसको स्ट्रिंग बनाएंगे पहले तो, हाँ स्ट्रिंग ही हो जाने दो, हाँ x डॉट क्या करूँगा, स्प्लिट, स्प्लिट करेंगे, किस पे करेंगे, स्पेस पे, और उसका जरूरत कॉलम आ गया न्यूमेरिक में। समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. कोई इशू? अभी अब मुझे मॉडल बिल्ड करना है, क्या करना है? तो मॉडल बिल्ड करने के लिए हमें साइकिट लर्न ये लाइब्रेरी लगती है। तो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल में हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, ये हमारा क्लास है, ये क्लास लीनियर रिग्रेशन नाम का। और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सपोज मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सपोज एल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने। यहाँ पे अभी देखो कौन कौन से मेथड्स है, यहाँ पे फिट है, पॉजिटिव है, नॉर्मलाइज है, कुछ हमें भी मुझे इसको भी मैंने ये बना दिया, अभी क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, चाहे तो इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली मैं फिट कर देता हूँ, फिट फिट एक्स क्या है मेरा, एक्स क्या रहेगा, Total square feet. बराबर, साइज टोटल स्क्वायर फीट, Square feet, बाथरूम bath and कॉलोनी, only. बालकनी, करेक्ट ना? एक सेकंड स्नेहल, हाँ बोलो स्नेहल। का 26 जगह
Okay guys, see you tomorrow. हेलो, इसको कंटिन्यू करते, Yes, sir. कल No problem. कंटिन्यू. Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, गुड नाइट। चलो, गुड नाइट, बाय.